Good morning. We are studying English grammar. I have completed first lesson. We will start next lesson. Before start next lesson, we will revise our previous lesson and I have completed first lesson. Before start first lesson, I want to ask some question. Are you agree? Yes, sir. Can you give the answer of our question? Yes, sir. Okay, let's start. The first question is, what is grammar? What is grammar? Yes, Grammar is a art which teaches us how to read, write, and speak correctly any language. yes, helps it. And next question, what is language? Language is a media of communication of thought, and feeling. Hmm. And next question, what is alphabet? A set of letters in a fixed order is called alphabet. Yes, good. Next question, what is letter? Letter is the smallest unit of any language. Yes, good. Next question, what is word? Yes. A group of a letter which make a group of a letter which make many is called word. Yes, good. That's it. What is sentence? Yes. A group of words which make meaningful sentences called sentence. Yes, good. What is part of speech? Different type of different type of word. Different type of word is different type of word. And anybody? Different type of word. Yes. Different types of word or classes which is used in sentence is called parts of speech. Yes, yes. Next question, what is vowel? Yes. Vowel sounds are produced when the air flow is out of the mouth without any blockage. Yes. Next question, what is consonant? Consonant are speech where the air flow is partly blocked. Yes. और कोई है जो किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? यस बेटा. A group of words which make meaning full sense is called sentence. Okay, okay. Yes, yes. Sir, a letter in a fixed order is called alphabet. Okay, okay. Alphabet. Yes. Vowel sound are produced when the air blows out of the mouth without any blockage. Yes, yes. Yes. A group of letters is called word. Yes. Sir, आवाज नहीं. Yes. a set of letters in a fixed order is called alphabet. Alphabet. Yes. Letter is the smallest unit of any language. Yes, yes. Good, good. A set of letters in a fixed order is called alphabet. Okay, okay. I know. You all have learned all answer of the question. Thank you. And next, we explain deeply the vowel and consonant with figure. जैसा कि मैंने सभी बच्चों से प्रश्न पूछा, सभी बच्चों ने संतोषप्रद जवाब दिया. प्रश्न ये सब थे, व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज वावेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट. एंड व्हाट इज वावेल. हम वावेल और कॉन्सोनेंट को थोड़ा सा डीपली समझेंगे. यू नो वावेल आर ए ई आई ओ यू and consonant are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q,
RHTVWXYZ। और जो Y है यह वावेल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद Y आता है तो वह वावेल का काम करता है। यदि किसी वावेल के पहले Y आता है तो Y कॉन्सोनेंट का काम करता है। कहने का मतलब यह है कि यदि A-E-I-O-U के पहले यदि Y आए तो Y कॉन्सोनेंट बन जाता है, ठीक है। यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद यदि Y आता है तो Y वावेल बन जाता है। अब हम डीपली समझेंगे, जैसा कि व्हाट इज वावेल का डिफिनेशन आप लोगों ने सुना। वावेल साउंड आर प्रोड्यूस व्हेन द एयर फ्लो आउट द माउथ विदाउट एनी ब्लॉकेज। अर्थात जो वावेल है वह जब लंग से हवा बाहर निकलती है यह मुख के रास्ते, तो इसको ब्लॉकेज करने वाले कोई नहीं होती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह है ह्यूमन बीइंग का है स्केल, और इसमें आप ये देख रहे हैं मेरा जहाँ पर ये देख रहे हैं सबसे ऊपर ये नोजल है, और ये नोजल कैविटी है, यह अपर लिप्स है, यह लोअर लिप्स है, और ये आपका टीथ है, और ये आपका पैलेट है, और ये आपका ग्लोटिस है, ये आपका ट्रेकिया है, और ये आपका फूड पाइप है, और ये आपका लंग है। और जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो इस नाक या मुंह के रास्ते से सांस को अंदर लेते हैं, और ये आपका लंग एक तरह से, ठीक है, फिलअप होता है एयर से ये फिलअप होता है। जब यह फिर एयर को जब हम बाहर निकालते हैं तो बीच बीच में कई चीजें हैं, जैसे कि इस एयर को रोकने वाले सबसे पहले ट्रेकिया है, इसके बाद आपका ग्लोटिस है, इसके बाद आपका पैलेट है, इसके बाद आपका टीथ है, इसके बाद आपका ये आपका लिप्स है, और ये नोजल है। ये सब एयर को क्या करते हैं, रोकते हैं। लेकिन जब वावेल वाले लेटर जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो ये लोग उस एयर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको फ्री बाहर निकलने देते हैं। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट से अलग अलग साउंड बनता है, जब हम कॉन्सोनेंट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो यही सब मिल करके इस कॉन्सोनेंट वाले लेटर को रोकते हैं। अर्थात पहले एयर आती है, पहले वो रोकते हैं, एयर को रोकते हैं, और एयर को रोकने का काम कौन कौन करते हैं, ट्रेकिया करते हैं, ग्लोटिस करते हैं, पैलेट करते हैं, टीथ करते हैं, और लिप्स करते हैं, नोजल, ये सब रोकते हैं। और ये सब रोक करके, हवा को रोक करके जैसा साउंड चाहिए उस हिसाब से उस एयर को पास करते हैं। तो इस तरह से हमारे वावेल और साउंड, और वावेल जो होता है वो फ्री होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपको फ्री। जब हम ए, ई, आई, ओ, यू को जब हम बोलेंगे तो हमारे अंदर जो है इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री निकलेंगे। और इसमें जब ध्वनि हमको अलग अलग प्रकार की ध्वनि जब पैदा करना होता है तो हमें इस कॉन्सोनेंट का हेल्प लेते हैं। उसके लिए हमको जगह जगह पर इनसे हमको बाधित होना पड़ता है। जैसे कोई बांसुरी होती है, बांसुरी आप देखे हैं, ये बांसुरी आप देखे हैं, ठीक है। और ये जो बांसुरी है तो इसमें जो जगह जगह छिद्र हैं, ये आपके एक तरह से ए, ई, आई, ओ, यू है। जब हम हवा को फूकेंगे तो वह एक प्रकार की ध्वनि निकलेगी, लेकिन जब हम उस ध्वनि को अलग अलग शब्दों में तब्दील करेंगे तो ये जो छिद्र है, ये जो होल है, इसको हमको बंद करना होगा, छोड़ना होगा। जैसा आवाज चाहेंगे वैसा हमको बंद करना होगा, छोड़ना होगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की, और वही जो साउंड निकलती है वो एक तरह से हम लोग आपस में कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने फीलिंग के माध्यम से, थॉट के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, थैंक यू।